ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਜ਼ ਗੈਸਟ ਹੋਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 1987 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਮੇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਇਹ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ NGO ਦੇ ਟਾਈਪ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਿਕਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਸ਼ਾਜੀਆ ਇਲਮੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਫੇਸ ਚਿਹਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਐਂਕਰ ਔਰ ਬੜੇ ਨੋਟਡ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਾਜੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ इस विजिट का की एम हैगा, की तुसी करना चाहते हो? जी, 2 काम है। एक तो वॉरिक यूनिवर्सिटी ने हमें गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया है, तो वहाँ पे कैसे आपने आम आदमी पार्टी ने कैसे बिल्कुल एक तब्दीली लाने की कोशिश की है हमारी सियासत में, सोचने में, तो एक तो वो काम है। और फिर हमने सोचा जो हमारे यूके सपोर्टर्स हैं उन सबसे मुलाकात होगी और अच्छा रहेगा और वॉलंटियर से अपने मिलेंगे और जो हमारा आगे का जो रास्ता है वो कैसे आगे बढ़ेगा इसके मुतालिक बात करेंगे। ठीक है, तो दूजे पासे खब्बे पासे मेरे नाल डॉक्टर गुरमीत सिंह, खब्बे पासे मेरे नाल डॉक्टर गुरमीत सिंह जो कि इत्थे यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜਾ यूके ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹਨ। ਸ਼ਾਜੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ IAS ਅਫੀਸਰ ਬਣੋ। ਜੀ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? जी, कभी सोचा नहीं था कि हम लोग सियासत में होंगे, राजनीति में आएंगे,
मैं तो बहुत ही पढ़ने लिखने का शौक था और सब कहते थे पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, हेड गर्ल हो तो आईएएस में जाओ, और ख़ास तौर से हमारे पिताजी बहुत कहते थे। लेकिन मुझे लगा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को बदलने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे लगा मीडिया में रहकर मैं इस्टेब्लिशमेंट के क्रिटिसाइज कर सकती हूँ, बल्कि अगर आईएएस ऑफिसर बन गई तो उसी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन जाऊंगी, उसी निज़ाम का। उससे तो मुझे लड़ना है। तो मेरे हमेशा मकसद था कि जो इनजस्टिस है, जो अन्याय है, जुल्म है, उससे लड़ने का है। उससे कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से, चाहे वो छोटे वर्गों के खिलाफ हो या महिलाओं के खिलाफ हो या गरीबों के खिलाफ हो, मतलब जहाँ पे अन्याय है वहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए। तो हमें लगा मीडिया एक बहुत बड़ा रास्ता है। लेकिन मीडिया में भी जब आ गए तो लगने लगा, 7 साल मेरा शो था स्टार न्यूज़ में और मैं एंकर थी और बहुत अच्छी जॉब थी स्टार नेटवर्क में। लेकिन लगा कि कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी आती है, सत्ता बदल जाता है, सत्ता बदलती रहती है, लेकिन सिस्टम वहीं की वहीं रहता है। और गरीब 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 के रहते हैं, अमीर अमीर रहते हैं, कुछ बदलाव नहीं होता, वही गंदगी, वही रिश्वतखोरी। तो हमें लगा कुछ और करने की ज़रूरत है। फिर जब अन्ना जी का मूवमेंट शुरू हुआ, अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा मैं मीडिया से हुई, मैं मीडिया में हेल्प कर लूँगी 2-3 महीने। लेकिन फिर ऐसा हिसाब किताब रहा कि 3 महीने का मैंने वादा किया था और अब 3 साल हो गए। तो बस ऐसी चीज़ है जो आपकी तरफ इतने आकर्षित कर लेती है। फिर लगता है नहीं, एक ही जिंदगी है और एक ही देश है अपना, देश के लिए जो करना है कर लो। तो ऐसे सोच के आ गए हम लोग। ठीक है। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जी, हमें लगता है हमें सक्सेस इसलिए मिली, बावजूद इसके कि हम एक नई पार्टी हैं, वो इस वजह से क्योंकि हमारा पूरा मैनिफेस्टो, हमारी पूरी सोच ही अलग है। बाकी पार्टियां आती हैं सिर्फ पार्टी होने के लिए, भाई इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन हारना है, सत्ता में आना है। लेकिन हमें सत्ता में नहीं आना था, ना ही इलेक्शन जीतना था, हमें देश बदलना था, हमें कानून लाना था, हमें आम इंसान की आवाज़ पहुंचानी थी। तो ये हमारी आवाज़ ही अलग थी, सोच ही अलग थी, काम करने का तरीका अलग था और मकसद भी अलग था। इलेक्शन तो एक जरिया था, लेकिन हमारा मकसद सत्ता नहीं था, हमारा मकसद था बदलाव, एक चेंज। तो इस वजह से लोगों ने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। उनको लगा कि तो हमारी पार्टी है, हम सब लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें आपको पुराना पॉलिटिकल लीडर या किसी एक पार्टी का कार्यकर्ता होने की जरूरत नहीं थी, एक आम इंसान होने की जरूरत थी। तो इसलिए इतनी बेहतरीन कामयाबी मिली इस पार्टी को। So after now you been your party has been in government, although it Yes. was a minority government, Yes. and Kejriwal has to resign. Yes. And now I believe you are focusing on the national level. Yes. So what are the national issues your party have that you are going to focus from now on? Yes, first of all, corruption is a very big issue for us, but inflation is also extremely big issue, and we feel the way pricing is done in our country, there is something really wrong with it. And because we have so many social security schemes, मनरेगा है और इतनी ढेर सारी आवास योजना है, लेकिन उसका हिसाब किताब रखने के लिए कि फंड जाया ना हो, उसके लिए कोई तरीका नहीं है। तो हमें लगता है कि करप्शन के साथ साथ इन्फ्लेशन, यानी कि फूड इन्फ्लेशन, वो महंगाई को रोकना, जिसमें ऑयल के दाम है, डीजल के दाम है, उन्हें कम करना, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट, ताकि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के कॉस्ट कम हो और लोगों को थोड़ा राहत मिले। उसके अलावा हमें लगता है 2 सेक्टर्स हैं, एजुकेशन और हेल्थ, इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इन 2 सेक्टर्स को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। सरकारी अस्पतालों और स्कूलों की हालत है कि ना तो कोई पढ़ सकता है, वहाँ पे बुरा हाल कर रखा है। प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत महंगे हैं। तो सरकारी स्कूल और कॉलेज हमारे ऐसे हों और हमारे सरकारी अस्पताल कि वो प्राइवेट काउंटर पार्ट्स की तरह हों, बेहतर काम वहाँ पे हो, और जितना बजट आता है उसका हिसाब किताब, ताकि हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर में वो हो। तो हमारे लिए फोकस मेरे ख्याल से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर तो रहेगा, और आम लोगों के हिसाब से लॉज बने। स्वराज का जो पूरा आइडिया है वो हम चाहते हैं कि हर एक मोहल्ला समिति डिसाइड करे, आम लोग बताएं एमएलए को और एमपी को, बजाय कि एमपी और एमएलए अपनी मर्जी से जो करना चाहें फंड्स का करते हैं। अभी उन्हें पूछना चाहिए कि भाई आपकी क्या दिक्कत है। कोई कहेगा हमारी नाली नहीं चलती, कोई कहता हमारी रोड बार बार टूटती है,
क्यों बेकार कॉन्ट्रैक्टर को लाते हो। कोई कहेगा अरे हमें तो हमारे स्कूल में, प्राइवेट जो स्कूल है वो तो बड़ा महंगा है, सरकारी स्कूल में टीचर नहीं आती, दिखने को तो है 4 टीचर है पेपर में, लेकिन आती 2 है। तो ये सब ठीक कीजिए। तो हमें लगता है हमें लोगों के पास गवर्नेंस के लिए जाना ही पड़ेगा। ठीक है। और ये जो पूरे बिचौलिए हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये जो पूरी तरह से सरकारें इस तरह से चल रही है और बहुत ज्यादा करप्शन है, इसको हम एक एक करके अगर हम करें, रोकें, तो वाकई में अच्छी गवर्नेंस हो सकती है। जब आप करप्शन की बात करते हैं तो अभी आपकी 49 डेज गवर्नमेंट चली, ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾइंड आउट ਕੀਤਾ ਹੁਣ तक? हम लोग ने देखा कि जैसे सेल्स टैक्स ऑफिस है, एक्साइज ऑफिस है, या वो जितने भी जल निगम में भी हमने देखा कि बहुत दिनों से करप्शन था, तो उसका फिर से हम लोग ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया। करीब 80 ऑफिसर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट से भेजा, जो बिकॉज जल बोर्ड में बहुत ज्यादा गड़बड़ था, कुछ हिसाब किताब नहीं था। फिर हमने देखा पुलिस बहुत हफ्ता वसूली करती थी, चाहे वो चाय वाला दुकान लगाए हो, रेड़ी पट्टी वाला हो, तो हमने उसमें देखा कि उसमें करप्शन बहुत कम हुआ। ऑटो वालों को पुलिस मारता था कि अभी पैसे दो, ये जाओ यहाँ से, तो वो सब काफी कम हुआ। तो हमने इन सब इलाकों में, इन सब एरियाज में देखा कि अलग अलग एरियाज में, चाहे दक्षिण दिल्ली हो या पूर्वी दिल्ली हो, कुछ समस्याएं कॉमन है कि जो हफ्ता वसूली का जैसे मामला है, तो वो हिम्मत लोगों की, हमने कहा कि हेल्पलाइन शुरू करेंगे, जो जो मांगेगा रिश्वत, तो इस डर से भी थोड़ा करप्शन कम हुआ कि अरे हमारा तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो वाकई में लगा लोगों को ही सीरियस है करप्शन को लड़ने के लिए। ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਡੀਅנס ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ इशू हैगे आ, की एजेंडा ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਾर्टी बनाई हैगी है? देखिए, एक तो बहुत बड़ा एजेंडा हमारे पास है, और हमने आपने सुना भी होगा, पहली बार 84 के दंगों के बाद SIT टीम बिठाई है अरविंद भाई के आते ही, क्योंकि इतनी सरकारें आई लेकिन सीरियसली किसी ने काम नहीं किया। बावजूद इसके कि मनमोहन सिंह थे वहां पे, लेकिन तब भी जो हमारे सिख दंगों के जो पीड़ित हैं, ना तो मुआवजा, ना सही तरीके से इंसाफ उनके साथ हुआ। और इतने साल हो गए, पता नहीं कैसे एविडेंस भी मिलेगा, लेकिन इतने केसेस में उन्होंने या तो कहा एविडेंस की सबूतों की कमी है, मामले को बस बंद ही कर दिया है। तो हमने एक SIT की बात की है, घोषणा की कि वो खुले वो मामला। दूसरी बात, अगर हम दिल्ली से चलते हैं पंजाब में करप्शन का बहुत बड़ा इशू है, चाहे वो दोनों पार्टियां हों, इतना मुश्किल वहां पे जीना है, कोई भी आप कुछ काम करा नहीं सकते बगैर पैसे के। तो जो अमीर बड़े हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं है वो दिक्कत है। दूसरी, वहां पे एक वंशवाद की बड़ी पॉलिटिक्स है कि भाई हमारे घर के हो या चमचागिरी करोगे तब तो तुम्हें टिकट मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं है। तो ये है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा है। और चाहे जो ग्रामीण इलाके हैं पंजाब के, रूरल हैं, उनकी अलग समस्याएं हैं, और जो अर्बन सेंटर्स हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो हमें लगता है कि वहाँ के लोकल लोग ही जो है बहुत ही इंटरेस्टेड हैं ये कुछ चेंज हो। वो लोग थक गए हैं, वही बीजेपी अकाली, वही सेम कांग्रेस से, पहले कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, उसमें ड्रग्स भी है, अल्कोहलिज्म भी है, ये सब भी बहुत ज्यादा इशू है। वाटर टेबल जो है कम हो गई है पंजाब में, एग्रीकल्चर के हिसाब से आप देखें बहुत ज्यादा पानी जो है नीचे जा रहा है उसका स्तर। ग्रीन रेवोल्यूशन तक तो देखा कि बड़ा फायदा हुआ, लेकिन अब ये बहुत सारे सीरियस इश्यूज हैं जिन्हें एड्रेस करना पड़ेगा। ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟ नहीं करती। अब यही है, दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, वो स्टेट सरकार सेंटर को ब्लेम करेगी, सेंटर उन्हें ब्लेम करेगा। लेकिन ड्रग्स ऐसा इतना सीरियस इशू है,
अगर आपकी स्कूलिंग, आपकी पढ़ाई और पढ़ाई के बाद रोजगार का जरिया नहीं होगा तो वो बहुत बड़ी समस्या है। पूरा के पूरे फैमिली को लेकर मतलब काउंसलिंग के साथ साथ स्कूलों में ड्रग्स के बारे में और उसको समझाया जाए बच्चों को, तो ये कितना जरूरी है स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बाद। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की इतनी कमी है, अब वो जो यंगस्टर है वो कहाँ जाए? तो हमें लगता है ये तो बहुत ही बड़ी सामाजिक इशू है और अगर इसको हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो एक तो ये है कि भाई पंजाब में प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन जब हमारे बच्चे को का एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आगे बढ़ने के रास्ते नहीं है और वो इतना ड्रग्स बढ़ रही है, इतना अल्कोहल है और इतना ज्यादा मतलब एक तरह से तार जुड़े हुए हैं, पुलिस वालों के तार जुड़े हुए हैं बाकायदा पॉलिटिशियन से और वो पूरा ड्रग का धंधा चल रहा है। क्यों सीरियसली लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ड्रग के धंधे को ठीक नहीं करती? आप ये बताइए, अगर खुला खेल ये चल रहा है सबके सामने तो क्यों नहीं रोका जाता? दिल्ली में आप देखिए कितना बड़ा रैकेट ये हुआ, शराब का, ड्रग्स का, सेक्स का पूरा रैकेट बस्ट हुआ। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब की पुलिस भी बड़ी बड़ी करप्ट है कि इस पर कुछ नहीं कोई बोलता है? अगर वो सीरियसली करना चाहते तो पंजाब के पॉलिटिशियंस अब तक इस ड्रग के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इनकी मिली भगत है पुलिस की और पॉलिटिशियन की और ये पूरी ड्रग माफिया की, इसलिए वो चल रहा है और हमारे बच्चे जो है उनका नुकसान हो रहा है। हमें लगता है बदलाव हमें चाहिए, सच्ची और ईमानदारी से पहल करनी चाहिए, नए लोग आए, अच्छे मन से लोग आए। आम आदमी पार्टी पंजाब को बड़ा मजबूत करे, अपने पंजाब के लिए करे, अपने देश के लिए करे ताकि बेहतरी हो। ईमानदारी बहुत जरूरी। देखिए अगर आपका भी मन वो कह रहे मैं भी आऊं, मैं भी पैसे बनाऊं, तो कुछ नहीं होगा। मैं आके कुछ सेवा करूं, मैं मदद करूं, मैं किसी के घर में खुशहाली लाऊं, ये सोचने की बहुत जरूरत है हमारे देश में। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ? जी हमें लगता है कि स्टेट की जो अपनी वो जो है पावर्स हैं वो रहने चाहिए। अभी दिल्ली में देखिए, दिल्ली की विधानसभा कुछ पास करना चाह रही है लेकिन बार बार केंद्र इंटरफियर कर रहा है, जैसे कि आपने देखा एक ये कांग्रेस का खेल रहा है, ये यूपीए सरकार का। तो हमें स्टेट के पावर्स रहें, बहुत जरूरी है स्टेट के पावर्स रहें। और लेकिन कभी कभी होता है कि स्टेट्स कहते रहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और हम देखते हैं कि पैसा है लेकिन पैसा गलत चीज में जा रहा है। अगर आप देखिए, अगर जाति संपत्ति देखिए बादल्स की, इनके परिवारों की, मतलब इतना अजीब लगता है कि इनको छोटी छोटी चीजों के लिए तो पैसे चाहिए और खुद की अपनी इनकम इतने डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है इनकी, और कोई तफ्तीश नहीं होती, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। तो मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है कि जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, सबूत लाए जाए और जो जो पॉलिटिशियंस में के खिलाफ कुछ मामले हैं उनकी जांच ईमानदारी से हो। जांच होती है झूठ मूठ की, या तो कोई केस करता नहीं, केस करता है तो वो एजेंसी करेगी जांच जिसको पैसे ही देती है सरकार, तो वो एजेंसी क्यों करेगी? अब तो वही हो गया कि जो हमारा असिस्टेंट है उससे को हमारे खिलाफ गवाही दे, क्यों देगा हमारे खिलाफ गवाही वो? तो अब यही है, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सीबीआई इंडिपेंडेंट हमारे देश में होनी चाहिए, एफआईआर के तरीके सिंपल होने चाहिए, तभी तो वो होगा। तो इससे हमारा बहुत स्टेट का स्टेकर पर जो भार है वो बहुत बचेगा। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ जी दिल्ली में जो दंगा हुआ था, 84 राइट्स हुए थे, उसमें बहुत ही आप जानते हैं कितने ज्यादा जाने गई थी हमारे सिख भाइयों की, बहनों की, और कितनी ज्यादतियां उसमें हुई थी, और एक तरह से नरसंहार इसे आप बोलेंगे, नरसंहार था ये, और सोच समझकर, और उसमें बाकायदा बड़े नेता इन्वॉल्व थे, कोई उनके खिलाफ कोई मामला नहीं हुआ। इतनी लंबी ये गाड़ी चलती रही, कह थक गए लोग, मतलब लोगों ने कहा हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हर चीज पैसे से आप नहीं कर सकते। तो इतने सालों बाद, और वो लोग आए अरविंद केजरीवाल के पास, और उन्होंने ना तो बीजेपी की सरकार ने करके दिया, ना तो कांग्रेस की सरकार ने करके दिया। हमने कहा हम लोग नए सिरे से जो केसेस बंद हो गए हैं उन केसेस को खुलवाएंगे और देखेंगे ताकि किसी की आत्मा को तो शांति मिले। जो परिवार वाले बिल्कुल परेशान हाल हैं और वो सब इंसाफ चाहते हैं, वो कुछ और नहीं चाहते, उन्हें पैसे का लालच नहीं है, उनके तो घर से कोई चला गया ना, गुजर गया, तो उसका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ। तो उसके लिए इसी तरह से जांच हो। हाँ। और जो लोग चाहे वो बड़े नेता भी हों उनके खिलाफ केस दर्ज किए जाएं। हाँ। ये एसआईटी हम चाहते हैं। यही मैं पूछ रहा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कि
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ जी ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? किन के बारे में? ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨਾ, जी 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 बिल्कुल। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ जी ਵੀ जी ਮਾਰੇ जी ਗਏ। बहुत। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? नहीं, हमें लगता है कि जब तक देखिए, जब तक पूरा मामला पॉलिटिसाइज रहेगा, राजनीतिक बना के रखेंगे, उससे आप कुछ नहीं हो सकता। आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी आज़ादी दे रहा है और पूरी बराबरी दे रहा है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये हक नहीं कि उस राइट के साथ खिलवाड़ करे। और जैसा लॉ एंड ऑर्डर है, जिसकी जो गलती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, जुर्म जुर्म है, सजा सजा है, और जुर्म जिसने किया है उसके खिलाफ केस होना चाहिए। जो भी सजा दी जाती है या तफ्तीश की जाती है, जांच की जाती है, उसको तो कानून की नजरों से देखना चाहिए ना, ठीक। कि जो कानून की नजर में सही है वो सही है, जो कानून की नजर में गलत है तो हो रहा है। ये रहा मुजफ्फर राइट्स में देखिए आप, इसमें पॉलिटिक्स होने लगती है, इसमें वोट बैंक से पॉलिटिक्स होने लगती है। जैसी वोट बैंक से पॉलिटिक्स होती है, इंसाफ का कत्ल हो जाता है फिर से एक बार। ठीक है। मैं मेरा ख्याल गुरमीत सिंह होना तो भी इसे क्वेश्चन ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਜੀਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਐਜ਼ NRI ਸਪੋਰਟਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਜਸਟਿਸ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਓਪਨਨੈਸ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਫੁੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਫ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਇਨ ਦ ਸੈਂਟਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ SIT ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਡੇਅਰਿੰਗ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਕੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਵੋਟ ਬੈਂਕਸ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਜੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। जी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। जी ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ स्टैंड होगा इन द फ्यूचर? नहीं, ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं ऐसी हमारी लॉ एंड ऑर्डर की हालत है इस वक्त कि बस जिसकी मर्जी आए, मतलब आप अनजस्ट तरीके से आप पकड़ लेते हैं और अच्छा केसेस चलते रहते हैं। एक तो बहुत ज़रूरी है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, एक लिमिटेशन हो एक केस की, चाहे वो बहुत ही सीरियस केस क्यों ना हो, तो आप इतना दिनों तक उसे ड्रैग करते हैं। मर्सी पिटिशंस पर आपकी कोई फिक्स पॉलिसी है नहीं,
कुछ भी नहीं है, वो टोटली डिपेंडेंट होता है प्रेसिडेंट पर। तो मतलब एक बहुत ही एम्बिग्युइटी बनी हुई है, क्लियर नहीं है वो है। और दूसरा हमें लगता है कि हमारे जुडिशरी में भी बहुत ज्यादा कमियां जो है उसकी बात करनी चाहिए। इतनी जुडिशियल वैकेंसीज हैं, ये सालों सालों केसेस चलते हैं। तो इंसान कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यस, तो इतने साल आप केस चलाएंगे तो लोगों का क्या होगा, उनके परिवारों का क्या होगा। और कभी कभी आप गलत चलाएंगे। इतने अंडर ट्रायल्स भरे हुए हैं हमारी जेलों में जिनके लिए कोई वकील नहीं है, इतने वो गरीब हैं। तो मतलब एक बहुत बड़ा ये इशू है। मैं उस दिन समझने की कोशिश कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट जाने में लाखों रुपए लगते हैं, कोई आम इंसान कैसे जाएगा। हर एक वकील मतलब 1-2-3 लाख पर घंटे के हिसाब से कम नहीं लेता। तो जो केसेस अपील के बाद जाते भी हैं तो इसमें क्या होगा। तो ये बहुत ही चिंता करने की और फिक्र की बात है कि हमारा ओवरऑल जो न्याय का जो सिस्टम है उसकी जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको देखना पड़ेगा, उससे भरना पड़ेगा। ये बहुत ही सीरियस एक इशू है, क्योंकि वो तो एक बैकबोन है हमारी डेमोक्रेसी का। वो एक स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है हमारे पूरे सिस्टम की। अगर जस्टिस ही हमारा ठीक से नहीं होगा, और ये हमें लगता है बहुत सोचने वाली बात है। ठीक है। ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਜਨਲ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਦੇ ਆਸਕ ਫॉर ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ within the framework of unity and integrity? देखिए, जहाँ तक देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी है उसके साथ तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। भारत का संविधान बड़ी क्लियरली कहता है। और अगर लोगों को, कुछ खास लोगों को कुछ खास इलाकों में कुछ चीज़ों को लेकर तकलीफ है तो उनसे डायलॉग करके, उनकी बात को समझ कर कि ये जो भावना उनमें है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ या जो हुआ उसे समझना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी दोनों की है, उन स्टेट्स के लोगों की भी है कि वो ज़्यादा जिम्मेदारी से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी बात रखें, और सेंटर की और स्टेट की भी है कि उनसे एक मीनिंगफुल डायलॉग करें, ताकि जो उनके मन में ये भावना है, जो भावना बहुत बड़ा एक वो भी बन सकता है, एक आंदोलन भी बन सकता है, या कुछ हिंसक भी हो सकता है मामला, उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम चीज़ें की तह में नहीं जाएंगे, वजह नहीं समझेंगे और लोगों को बुरा भला ही कहते रहेंगे, तब तक कुछ वो ठीक नहीं होगा। हम बड़ा आसान है कहते हैं वो एंटी नेशनल है, वो भारत से हटना चाहते हैं, लेकिन उनके इश्यूज भी समझने पड़ेंगे और उनको भी समझना पड़ेगा कि जो कुछ वो मांग रहे हैं और इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि देश का संविधान उन्हें इसकी इजाज़त दे रहा है। तो देश के संविधान के खिलाफ कोई भी कदम उठाना, कोई भी बात करना, उसके अधीन आप सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन अगर उसकी मर्यादा आप नहीं करेंगे तो फिर उसको डील करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। ਸਾਡੇ ਕੁਝ NRIs ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ NRIs ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ NRIs ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ NRI ਹੈਗੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡ ਟੇਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਵਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ NRIs ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ NRIs ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੇਫ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ के दसो भी तुसी की करोगे, कहे जे लॉज बनाओगे या की करोगे? जी देखिए, हम ये अरविंद केजरीवाल ने CII में भी, समिट में भी बोला, और हमने भी बोला, हमने, क्योंकि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका नाम नहीं लूंगी, सब जानते हैं, हमने उनके खिलाफ मोर्चा खोला।
लेकिन ये तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। अगर ऑनेस्ट पॉलिटिक्स होगी तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अब इतने लोग, अब प्रवासी निवास में भी जब हम गए थे तो लोगों ने सबने कहा कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इतना मुश्किल रास्ता है, हर जगह ये लाइसेंस, ये क्लियरेंस, ये वो, और लोग परेशान हो जाते हैं। आपको बिजनेस को बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेट करके आसान करना पड़ेगा और ऑनेस्ट बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट में जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको लाना पड़ेगा ताकि क्रोनिक कैपिटलिज्म खत्म हो। क्योंकि अगर वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा तो जॉब क्रिएशन कैसे होगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो हमारे लोगों का क्या हालत होगी, हमारी इकोनॉमी की क्या हालत होगी। तो हम लोग कैपिटलिज्म के हक में हैं, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म के हम लोग खिलाफ हैं कि कुछ लोगों ने बस अपने मिल बांट कर लिया सारा कुछ। पूरे देश का जो खनिज है, जो मिनरल्स हैं, जो माइंस हैं, जो पानी है, जो 2G है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी नहीं, ये नहीं कि एक दो उसको अपनी जेब में डाला हुआ है कुछ पार्टियों ने, उन्होंने भी अपनी पार्टियों को अपनी जेब में डाला हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस 2-3 के लिए है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल बिजनेसमैन शुड बी देयर, सो दे ऑल हैव एक्सेस, एंड ऑनेस्ट पॉलिटिक्स लीड्स टू good economics, because the atmosphere then is conducive for foreign direct investment, direct and indirect both. So it makes India a more viable place to encourage investment. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ NRI। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮੇਜਿਨ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ NRIs ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ NRI ਗਰੁੱਪਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ UK ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, USA ਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ NRIs ਦੁਆਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ GP ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੇ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੈਲਥ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਜੀਆ ਜੀ। जी ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, we will not let corrupt people come in, enter. This is not a national agenda. How would you support this? How would you stop those people coming in? Actually, how will stop them? देखिए, हमारा जो आम आदमी पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा अपना पार्टी का, हर एक पार्टी का होता है, हमने 2-3 चीजें उसमें लिखी हैं कि एक ही परिवार के 2 लोग ना हो, ताकि वो वंशवाद जो होता है ना, घर के ही लोग सारे ना आए। दूसरा, कोई भी मामला अगर करप्शन का किसी के खिलाफ भी हो, चाहे वो इनकम टैक्स का भी एवेजन का मामला हो, उनको हम टिकट ही नहीं देंगे। और तीसरा, कोई भी इंसान जिसने कम्युनलिज्म के तहत कोई नफरत की बात की हो, उसको हम बिल्कुल अलग रखेंगे और उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, महिलाओं के प्रति खास तौर से। तो इसमें जैसे ही अगर, या कभी कभी होता है कि भाई पता नहीं चला करप्शन का मामला है, तो जैसे ही हमें पता चलेगा कि बाकायदा करप्शन है, हुआ है इस मामले में, एक तो जन लोकपाल बिल इतना शानदार बिल है कि अगर हम लोग भी करप्शन करना चाहेंगे, किसी का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम बड़ी बड़ी बातें कर लें, कल हम पावर में आए और हम खुद करप्ट हो गए, फिर पैसा देकर किसी का दिल भी डोल जाए, तो अगर लोकपाल बिल होगा ना तो हम भी उसमें फंसेंगे। सबसे बड़ी बात तो
तो कोई भी हमारे खिलाफ लिख सकता है उसमें। तो हमारे पार में होने के बावजूद तो यही मकसद है कि बड़े बड़े लोग जिनके खिलाफ कोई हिम्मत नहीं करता उनके खिलाफ भी लोकपाल बिल काम करे और उनको परमिशन ना लेना पड़े इन्वेस्टिगेटर्स को, ताकि वो काम कर चुके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। तो ये तो हम ऐसे इंश्योर करेंगे। और दूसरा एक बहुत थरल इसमें हम लोग एक रिसर्च कि भाई ये हमारे कैंडिडेट्स हैं और हम ओपनली वेबसाइट पे डाल देते हैं। किसी को भी इनके खिलाफ कोई करप्शन का मामला हो तो हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं, ऐलान है, और फिर आप बताइए। हो सकता है कहीं लिखित में ना हो लेकिन पता चले। हम बताएं आपको, एक छोटा सा मामला था, करप्शन का था भी नहीं। हम 70 सीट्स लड़े। रजौरी गार्डन से जो हमारा कैंडिडेट था, नॉमिनेशन के बाद हमें पता चला उसके खिलाफ कुछ डाउरी का मामला था, उसकी वाइफ ने किया था और कुछ मामला खत्म हो गया था, लेकिन वो डाउरी का बाकायदा रहा था और उसकी कुछ दिक्कत थी। हमने फौरन उसका कैंडिडेटशिप कैंसिल किया। हम लोग सिर्फ 69 सीट्स लड़े क्योंकि नॉमिनेशन हो गया था, बदल भी नहीं सकते थे हम लोग, लेकिन हमने वो रिस्क लिया। तो हम आखिरी मिनट तक हम लोग जो है तैयार हैं अगर कोई ऐसा मामला हुआ। और दूसरा, ऐसा सख्त कानून हो देश में ही हो कि कोई भी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो बहुत बड़ा डीएम हो या बहुत बड़ा मंत्री हो, उसके खिलाफ मामला है तो एक आम इंसान आवाज उठा सकता है और कुछ बुनियादी सबूत के साथ इंडिपेंडेंट जांच हो सकती है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ? हमें कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। हमें लगता है जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज रही हैं दोनों एक जैसी ही बातें करती हैं और उनके वादे कुछ और होते हैं, लेकिन जैसी पावर में आती हैं करती ऑपोजिट है। दोनों लोग लुभावन प्रॉमिसेस करती हैं और चाहे वो बड़े बड़े सब्सिडीज की बात हो, मतलब हजारों की करोड़ों की सब्सिडीज लोगों को खुश करने के लिए। और अभी भी हमें लगता है सब मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी के लोकायुक्त को देखें गुजरात में, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा लचर और टोटली पावर सेंट्रिक जो है लोकायुक्त वहां पे है। किसी की हिम्मत नहीं वहां पे आवाज उठाने की। वहां पे जो डेट था, जो कर्ज था, राष्ट्र स्टेट का डेट, वो बढ़ गया है इतने सालों में उनके रहने के। तो पता नहीं किस तरह की तरक्की की बात करते हैं। हमें लगता है कि एक प्रोजेक्शन होता है मीडिया की तरफ से, लेकिन असलियत से उसका कम लेना देना होता है। एक मीडिया उसको बहुत बड़े तरीके से पोर्ट्रे करती है कि ये है और लोगों को लगता है हाँ कुछ सच होगा, लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे और पता करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि नहीं, बहुत सारी कमियां हैं। और जब एक कोई इंसान बदल नहीं सकता, ना नरेंद्र मोदी ना राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी की सोच है कि अरविंद केजरीवाल भी नहीं, आम इंसान, आम औरत जब तक उठेगा नहीं ना और क्या नहीं, हमें बेहतर भारत चाहिए, कुछ नहीं बदलेगा हमारे देश में। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, तुसी एज ए लास्ट मतलब वर्ड ਕੀ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਟ ਕੇਟਰਸ ਟੂ ਦ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ अरविंद केजरीवाल जी ने SIT भी शुरू की है और भुल्लर साहब की रिहाई का भी कदम चुकया है। इस तो पता लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर पावर में आएगी तो सिख कम्यूनिटी के सारे मसले 47 तो लैके आज तक जिन्ने भी अटके उन्होंने सारे ते फिर तो विचार किया जा सकता है और असी सारे मिल बैठ के प्यार मुहब्बत नाल ओदा एक सोल्यूशन कर सकते हैं। इस करके मैनू ये लगता है कि जो भी अपने आप को सिख कहता है या पंजाब की खुशहाली देखना चाहता है, उन्होंने आने वाले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी नू ही सपोर्ट करना चाहिए है। इस तो अच्छा मौका सानू हुण नहीं मिलेगा कदे भी। ठीक, शाजिया जी जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हम ये मैसेज देना चाहेंगे अपने सारे व्यूअर्स को कि आप लोग दिल से जुड़े। जैसे कि मैंने कहा, एक ही देश है हमारा, एक ही हमारा वतन है और एक ही जिंदगी है।
कुछ भी हम अच्छा कर लें अपने देश के लिए, अपने साथियों के लिए, और अपना तो हम सोचते ही हैं, लेकिन हम पड़ोसी का भी सोचें, अपने शहर का भी सोचें, अपने राज्य का भी सोचें और अपने देश का भी सोचें। इतनी बुरी हालत है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर हम लोग नहीं उठेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आम आदमी पार्टी सबके लिए है, ये आपके खुद के लिए है, आपकी अपनी पार्टी है, आपका अपना परिवार है। तो जाति से ऊपर हटकर, धर्म से ऊपर हटकर, एक आम इंसान की तरह एक अपने देश के लिए कुछ करने का भी वक्त है। जितना हम लोग दे सकते हैं फंड्स के जरिए भी, जो एनआरआईज हैं वो दे सकते हैं पैसा, दिल से दीजिए। इतने भले लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लड़ नहीं सकते, उनके पास पैसे नहीं होते, तो उनको मौका दीजिए। दिल से आप लोग हेल्प कीजिए, पैसे के जरिए भी, श्रम के जरिए भी और दुआ के जरिए भी। जय हिंद। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਲੀਫਲੈਟ ਵਗੈਰਾ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 23rd of February ਨੂੰ at the banquet 20 Merrick Road South Hall, 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ at the center banqueting 20 Merrick Road South Hall। ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਿਊਚਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਇਲਮੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਪੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਖਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।